السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا جلد مقبول ہوتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ محترمہ کی کویتا بلا مقابلہ ایمس انتخابات میں کامیابی درج کرواتے ہوئے لکھی تاریخ۔ ان کی کامیابی پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی جانب سے شہر میں جشن کا اہتمام تو شہر بھر میں قائدین کی جانب سے مٹھائیوں کی تقسیم۔ آر ٹی سی کی ترقی کے لیے ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین و رورل رکن اسمبلی جے ڈی گوردھن نے کیا اپنے تنخواہ کا آر ٹی سی کو عطیہ۔ پی آر ٹی یو ضلع صدر موہن ریڈی کی آر بی وی آر آر سوسائٹی ذمہ داروں کی جانب سے تہنیتی تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد۔ پولیس کمشنر کارتیکیہ کا ویلپور پولیس اسٹیشن کا اچانک دورہ و حادثات کی روک تھام کے لیے کارروائی کرنے کی دی ہدایت۔ پی یو سی کمیٹی چیئرمین و آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کا دورہ، آرمور و عوامی مسائل کی سماعت و ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کا دوسرا سالانہ اجلاس کا دہلی میں انعقاد۔ صدر رفیق قریشی کو ان کے فرزند نے کی شرکت، کیا مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی رہائش گاہ میں مقامی درجاتی ایم ایل سی کے طور پر کے کویتا کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آنے پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے زیر نگرانی میں فتح کا جشن منایا گیا۔ شہر کی ماروتی نگر میں واقع اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی رہائش گاہ میں ٹی آر ایس پارٹی کی امیدوار کے کویتا صاحبہ کا ایم ایل سی کے طور پر بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لانے پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے زیر نگرانی میں فتح کا جشن منایا گیا۔ اس خوشی کے موقع پر نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی نے پٹاخہ جات نظر آتش کیے تو میئر نیتو کرن نے ٹی آر ایس قائدین و عوامی نمائندوں کو مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح سے ٹی آر ایس پارٹی ریاستی قائد رام کشن راؤ، زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ، کارپوریٹرز ٹی آر ایس قائدین نے پٹاخہ جات نظر آتش کی اور اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و ایم ایل اے بیگالہ گنیش گپتا نے ٹی آر ایس قائدین و عوامی نمائندوں کو مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ جے تلنگانہ، جے تلنگانہ، జై తెలంగాణ నినాదాలు قریشیوں کے مسائل کے حل و قانونی رہنمائی کے لیے آل انڈیا قریش ایکشن کمیٹی کے بیرس و بے باک خدمات جاری۔ دوسرا قومی کونسل اجلاس میں صدر ضلع رفیق قریشی و دیگر نے کی شرکت و طلباء کی ہمت افزائی کے لیے دی گئی تہنیت۔ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کا دوسرا سالانہ اجلاس ہندوستان کے مرکز دہلی میں قومی صدر ایڈوکیٹ فہیم قریشی کی قیادت میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ملک کی ہر ریاست سے تنظیم کے ذمہ داروں نے جوک در جوک شرکت کی اور اس اجلاس کو کامیاب بنایا۔ اس اجلاس میں تنظیم کو مستقبل میں اور بھی کامیاب بنانے اور قریشی برادری کے مسائل کے حل کے لیے مختلف رائے حملی تیار کی گئی اور ہر ریاست میں قریشی برادری کی جانب سے ریاستی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے قریشی برادری کے مسائل سے واقف کرواتے ہوئے انہیں حل کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا اور اسی طرح سے مرکزی حکومت تک بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے نمائندگی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح قریشی برادری کے نوجوانوں کی تعلیمی ترقی و نوجوانوں کی ہمت افزائی کے لیے اعلیٰ سطحی
تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی دہلی میں ہمت افزائی کرتے ہوئے ان کی تہنیت دی گئی، جس میں آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی صدر نظام آباد رفیق قریشی کے دونوں فرزند کی تہنیت دی گئی، جن میں نوید قریشی جنہوں نے حال ہی میں اپنی انجینئرنگ کی تعلیم اعلیٰ نشانات کے ساتھ مکمل کی۔ اس موقع پر تنظیم کے نائب صدر ایڈوکیٹ صنوبر علی قریشی، نارتھ انڈیا کنوینر سلیم قریشی، دہلی صدر اسکین قریشی و شہر نظام آباد سے رفیق قریشی کے علاوہ مختلف ریاستوں سے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ آداب ناظرین، میں ذیشان رضوی روشنی ٹی وی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہندوستان کی ابھرتی ہوئی تنظیم جنہوں نے کئی مقامات پر اپنی موجودگی کا اظہار کراتے ہوئے حکومتوں کو جھکنے پہ، اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، جس کی صدارت وکلا کر رہے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہو یا پھر سپریم کورٹ کے۔ ہمارے ساتھ آج تلنگانہ کے ہائی کورٹ ایڈوکیٹ وہ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی صدر فہیم قریشی صاحب موجود ہیں، جو یہاں پر دہلی میں ایک ان کی سالانہ میٹنگ کو خطاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ہمارے ساتھ ان کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کے قیام کا وجود کا ضرورت کیوں پڑی اور یہ کس مقاصد کے تحت اب کار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہماری باتیں سارے ہندوستان میں پہنچائی جائے۔ دیکھیے، آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کا قیام جس حالات میں بنا، اس کو میں یہ بتاؤں کہ سارے ہندوستان میں قریش برادری کے اوپر کافی مصیبتیں اور قانون کے نئے قانون لگا کر قریش برادری کو برباد کرنے کے لیے جو تکلیفیں دی جا رہی ہے، اسی تکلیفوں کے ایک منشا جو ہے مخالفین کا، وہ ہندوستان میں سلاٹر ہاؤسز سارے بند کروانا۔ تو یہ واقعہ ہمارا 2003 میں حیدرآباد میں پیش آیا۔ حیدرآباد کے جو سلاٹر ہاؤسز ہیں وہ 2003 میں لاک کر دیے گئے ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ۔ تو اس وقت جب ہزاروں لوگ، لاکھوں قریش برادران اور دوسرے لوگ اس سے جو منسلک کا کاروبار کرنے والی انڈسٹریز ہیں، لیدر انڈسٹریز ہے، بون انڈسٹریز ہے، کاسمیٹک انڈسٹریز ہے، کافی جو انڈسٹریز ہیں، یہ سارے جب بے روزگار ہو گئے تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی انقلابی کارروائی ہو اور ہماری نمائندگی گورنمنٹ تک ہو۔ اس حالات میں آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا 2003 31 دسمبر کو۔ اس کے بعد میں 2004 میں اس سے باضابطہ طور پر ہم نے رجسٹر کروایا۔ اس کے بعد میں ہماری تحریک میں ہزاروں برادران قریش شریک ہوئے، بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ بحیثیت MLC محترمہ کے کویتا بلا مقابلہ منتخب ہونے پر TRS اقلیتی قائدین کی جانب سے جشن کا اہتمام وہ ان کی شاندار کامیابی پر TRS اسٹیٹ سیکریٹری طارق انصاری نے کیا خوشی و مسرت کا اظہار۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں رکن قانون ساز کونسل کی حیثیت سے دوسری بار محترمہ کے کویتا نے مقابلہ کرتے ہوئے بلا مقابلہ جیت حاصل کرنے کی خوشی میں آج TRS قائدین کی جانب سے شہر کے دھرنا چوک پر جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں TRS قائدین نے مٹھائیوں کی تقسیم کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر TRS اسٹیٹ سیکریٹری طارق انصاری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے کویتا ایک باکمال قائدہ ہے، انہیں قبل میں بہترین پارلیمنٹ کے خطاب سے بھی نوازا گیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے جو کووڈ دور میں جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہے اور آج انہیں کی مدد کے سبب کئی لوگ بیرون ممالک سے اپنے گھر واپس آنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آج ان انتخابات میں کسی بھی مخالف جماعت کے قائدین کی جانب سے آگے نہ آتے ہوئے اپنی ہار تسلیم کرنا ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ TRS سٹی نائب صدر محمد متین، عبد الباری، محمد سمیع، صادق و دیگر اقلیتی قائدین موجود تھے۔ میں آج نظام آباد کی عوام کی جانب سے اور نظام آباد اور کامری ڈسٹرکٹ کے تمام جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی جانب سے میں جو ہے کویتا میڈم کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں اور تمام ریپریزنٹیٹیوز کو بھی جو ہے عوامی نمائندوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ہے دوسری بار محترمہ کویتا صاحبہ جو دلی کی ہر دل عزیز خاتون ہیں، جو ترقی کے نام سے جانی جاتی ہے، دوبارہ جو ہے بلا مقابلہ لحاظ انتخاب ہونے پر یونانیمسلی کا جو ہے ان کا جیتنے پر میں ان کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں تمام عوام کی جانب سے۔ پھر ایک بار یہی امید کرتا ہوں کہ جو اس طریقے سے ان کے سابقہ ان کے ایم پی کے دور میں اس طریقے سے جو کامات جو ترقی کے کامات ہوتے تھے اور یقیناً وہ کامات جو ہے پھر ایک بار جاری ہوں گے، کیونکہ یہ ایسی خاتون ایک سیکولر خاتون ہے
और ख़ास तौर पे जो है गरीब और मुस्तहिक़ अवाम के लिए हमेशा जो है 24 घंटे जो है खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं ये खातून, ये मोहतरमा। तो फिर एक बार जो है उम्मीद करते हैं कि बहुत तरक्की काम जो है बहुत अच्छे होंगे। फिर एक बार KCR साहब का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो है आपने इस मोहतरमा कविता साहिबा को जो निज़ामाबाद से जो है MLC के लिए दोबारा टिकट देने पर हम तमाम निज़ामाबाद की अवाम कम्युनिटी की जो है तमाम जो है अवामी नुमाइंदों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर एक बार जो है मोहतरमा कविता साहिबा को जो है बहुत बहुत सारी जो है मुबारकबाद देते हैं। फिर एक बार जो है यहाँ जोश का जश्न का माहौल है यहाँ पर कि जो है जिस तरीके से यूनानी मसली उनको जो है कामयाबी दी गई है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ फिर एक बार जश्न का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, कविता मैडम जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। तेलंगाना सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी व तामीर का 25 नवंबर को संगे बुनियाद, हुकूमत की जानिब से बिलाखिर ऐलान। बिलाखिर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 25 नवंबर को सुबह 11 बजे सेक्रेटरीट की मसाजिद की तामीर नौ के लिए संगे बुनियाद रखने का ऐलान किया गया है, जिसमें वाइस चांसलर ऑफ जानी निजामिया मुफ्ती खलील अहमद साहब संगे बुनियाद के फराइज अंजाम देंगे और रियासती वजीर दाखिला महमूद अली व तेलंगाना वक्फ बोर्ड सदर मोहम्मद सलीम व दीगर ओहदेदार शिरकत करेंगे। वाज़ रहे कि मस्जिद की बाजियाबी के लिए पूरी रियासत में अवाम की जानिब से पुरजोश एहतजाज भी दर्ज करवाया गया है। म्यूनसिपैलिटी की इजाजत के बगैर तामीर करने वालों पर कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने सख्त कार्रवाई करने का जिम्मेदार ओहदेदारान को दिए अहकामात। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने जिले दफ्तर में टास्क फोर्स का इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि नए म्यूनसिपल कानून के तहत जिले व दीगर म्यूनसिपैलिटियों में जारी गैर कानूनी तामीरात का जायजा लेते हुए कवायद के खिलाफ तामीर करने वाले पर सख्त तरीन कार्रवाई करने की जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा RDO श्रेणु राजागौड़, शहर के प्लानिंग ओहदेदार शैलजा व दीगर ने शिरकत की। बिला मुकाबला MLC इंतखाबात में कामयाबी दर्ज करते हुए मोहतरमा कलवाकुंटला कविता ने जिले में दर्ज करवाई तारीखी जीत। मुखालिफ जमातों की जानिब से हल्फ बर्दारी भी दाखिल नहीं की गई। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC कानून साज कौंसिल के इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कोटा पार्टी श्रीनिवास की जानिब से दाखिल करता 50 नामजदगी को रिटर्निंग ओहदेदार ने मुस्तरद करते हुए कहा कि इनके एफिडेविट में गलतियां होने की बिना पर ही नॉमिनेशन को खारिज किया गया, जिससे कि कविता का MLC के तौर पर बिला मुकाबला इंतखाब के मुतालिक सरकारी बयान जारी होना बाकी है। एक साल कबल के कविता ने मुत्तहिदा जिले निजामाबाद से MLC के तौर पर शानदार जीत दर्ज करवाते हुए फिर दोबारा MLC मुकाबले में शिरकत करने वाली के कविता की जानिब से 4 सेट नॉमिनेशन दाखिल किए गए। इसी तरह से गुज़िश्ता मुनाक़िदा MLC मुकाबला जात को मद्देनजर रखकर BJP और कांग्रेस पार्टी कायदीन मुकामी इदारा जाती MLC इंतखाब में हिस्सा न लेने के मुतालिक ऐलान जारी कर दिए। స్క్రూటినీ అయింది। నిన్ననే 2 ఫామ్లు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది। ఒకటి మేడం కల్వకుంట్ల కవిత గారు, అదేవిధంగా రెండోది కోటిగిరి శ్రీనివాస్ గారు చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు స్క్రూటినీలో రాష్ట్ర అబ్జర్వర్గా మేడం వచ్చారు, అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు ఉండే వారి సమక్షంలో మా 4 వేసిన సెట్లలో కూడా 4 పాస్ అయినాయి। కోటగిరి శ్రీనివాస్ MLCగా నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। పంచాయతీరాజ్ ఛాంబర్ నుంచి నిధుల విధుల కోసం, అధికారాల కోసం మా పోరాటం అయితే ఈరోజు నామినేషన్ ఏదైతే ఉందో తిరస్కరించబడింది। అఫిడవిట్లో తప్పున్నదని, అది బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇవ్వలేదని, పూర్తి స్థాయిలో డాక్యుమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి రిజెక్ట్ చేశారు। రాబోయే రోజుల్లో అధికార పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఎంపీటీసీలని గుర్తించి న్యాయం చేయాలని చెప్పి RTC की तरक्की के लिए नौमंतखब TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन कोशा RTC की तरक्की के लिए इन्होंने किया अपने तनख्वाह का दिया अतिया। RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि बतौर रुकन असम्बली की हैसियत से हासिल होने वाली तनख्वाह काफी होने का इन्होंने अपने खत में इजहार करते हुए कहा कि RTC खसारे में होने की बिना पर मजीद बोझ आयद न करने का इंकशाफ करने पर MD सजनार इनकी जानिब से लिए गए अहम तरीन फैसले पर वो गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया और इस मौके पर RTC के अहदेदार मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया। आज़मीन हज के पासपोर्ट की आजिलाना इजराई की हिदायत, पासपोर्ट दफातर को वजारत खारिजा के अहकामात।
मरकजी वजारत खारिजा ने मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर और अहदेदारों को हिदायत दी है कि हज 2022 के आज़मीन की दरख्वास्तों की आजिलाना एक्सपी करते हुए पासपोर्ट की इजराई अमल में लाई जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मोहम्मद याकूब शेख ने तमाम रियासती हज कमेटियों को वजारत खारिजा की जानिब से जारी करदा सर्कुलर रवाना किया है। सर्कुलर में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन के लिए पासपोर्ट की आजिलाना इजराई के सिलसिले में की गई नुमाइंदगी का हवाला दिया गया। सर्कुलर में कहा गया है कि 31 जनवरी तक दरख्वास्तों के इत्काल की मोहलत है और आज़मीन को दरख्वास्तों के इत्काल के वक्त 31 जनवरी 2022 से खबर जारी करदा और कम अज कम 31 दिसंबर 2022 तक मोहलत का पासपोर्ट पेश करना जरूरी है। मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर को हिदायत दी जाती है कि वो आज़मीन हज की दरख्वास्तों का पुलिस वेरिफिकेशन और दीगर ज़रूरियात के आजिलाना तकमील करें। आज़मीन हज की जानिब से लम्हा आखिर में दरख्वास्तों के लिए बड़ी तादाद का इम्कान है, लिहाजा तमाम पासपोर्ट दफातर से दरख्वास्त की जाती है कि वो नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर करें और आज़मीन हज को सहूलत के लिए खुसूसी काउंटर्स के साथ साथ अपॉइंटमेंट स्लॉट मंजूर करेंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि आज़मीन हज की दरख्वास्तों और शिकायत की आजिलाना एक्सवी की जाए। इसी दौरान तेलंगाना में हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के इत्काल का अमल जारी है। अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 300 कोड नंबर अलॉट किए हैं, जिनके तहत आज़मीन की तादाद तकरीबन 1200 हो सकती है। तेलंगाना हज कमेटी ने दरख्वास्तों के ऑनलाइन इत्काल के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए हैं। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए 51 दरवाजे मुख्तस। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद हरम में नमाजियों को आमद-ओ-रफ़्त की सहूलत फराहम करने के लिए 51 दरवाजे मुख्तस किए गए हैं। मीडिया के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि दरवाज़ों का इदारा मस्जिद हरम के तमाम दरवाज़ों का निगरान है। ज़रूरत के वक्त दरवाजे खोले जाते हैं। हर दरवाजे पर निगरान तैनात होते हैं जो ज़ायरीन को मस्जिद हरम में खाने पीने की अशिया और धारदार आलात ले जाने से रोकते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद हरम के तमाम दरवाज़ों के नाम और नंबर है ताकि ज़ायरीन को आते जाते वक्त दरवाजे की शनाख्त में आसानी हो और खुसूसन मस्जिद हरम से निकलते वक्त रिहाइश पर जाने के सिलसिले में किसी किस्म की जहमत ना पेश आए। बयान में इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा कि तमाम दरवाज़ों पर निगरान अफराद 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देते हैं। ये ज़ायरीन को किसी भी हंगामी सूरत हाल से दो चार होने की सूरत में सऊदी हलालुल हमर से राब्ता करके इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने में ताउन करते हैं। मुतासरीन को हॉस्पिटल पहुँचाने के सिलसिले में हलालुल हमर के साथ राब्ता करते हैं। मौसरा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर लक्ष्मण की ज़ेरे निगरानी रियासती सतह पर मौजूद धान के ज़ख़ीरे को फिलफुर खरीदी अमल में लाकर मुनासिब कीमत फराहम करने के मुतालिक मेमोरेंडम को तहसीलदार के हवाले किया। मौसरा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर केसी लक्ष्मण की ज़ेरे निगरानी में रियासती सतह पर मौजूदा धान के ज़ख़ीरे को खरीद कर फौरी तौर पर मुनासिब कीमत फराहम करते हुए किसानों को राहत फराहम करने से मुतालिक एक मेमोरेंडम तहसीलदार राजशेखर को हवाले किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर केसी लक्ष्मण ने कहा कि रियासती सतह पर फसल तैयार होकर 1 माह हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से सिर्फ 11 लाख कुंटल धान के ज़ख़ीरे को खरीदा गया है और माँ बाकी धान को फिलफुर खरीदी अमल में लाते हुए किसानों को रकम की अदायगी न करने की सूरत में किसानों की जानिब से एहतजाज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में मंडल किसान के सदर टोटा राजू, मौसरा गाँव के कांग्रेस पार्टी सदर संगम साइलू और दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलए गंगाराम की ज़ेरे निगरानी में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को कदीम तरीके के तहत खरीदने का मुतालबा करते हुए इससे मुताल्लिक़ याददाश्त को एमआरओ को हवाले किया। जिले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलए गंगाराम के ज़ेरे निगरानी में हर एक किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को कदीम तरीके के तहत ही खरीदने का मुतालबा करते हुए इससे मुताल्लिक़ एक याददाश्त को एमआरओ को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ओटीपी नंबर से किसानों को दिक्कत होने का इजहार करते हुए बताया कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को न खरीदने के बायस तकलीफ में मुब्तला किसानों को ओटीपी का
काम बताकर ऑफिस के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होने वाले किसानों की तकलीफ समझकर हुकूमत फौरी तौर पर कदीम तरीके के तहत धान के ज़ख़ीरे को खरीद कर किसानों को राहत पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर जे हनुमंडलू, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी सदर बलराम रेड्डी, एमपीटीसी रवि नायक, कांग्रेस पार्टी मंडल कायदीन व दीगर ने शिरकत की। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत फराहम करते हुए फिलफूर खरीदने के मुतालिक कांग्रेस के कायद नेहरू नायक के जेर निगरानी में डोनकल रेलवे स्टेशन से एमआरओ ऑफिस तक रैली का इनेकाद अमल में लाकर एमआरओ को याददाश्त हवाले की गई। जिले महबूबाबाद डोनकल मंडल के मुकाम पर कांग्रेस के कायद नेहरू नायक ने पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत की जानिब से फिलफूर खरीदी अमल में लाने के मुतालिक अवाम में शोर बेदारी व किसानों की मदद के लिए मुनक़दा रैली को डोनकल रेलवे स्टेशन से एमआरओ ऑफिस तक इनेकाद अमल में लाते हुए एक याददाश्त एमआरओ को हवाले किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन जगदीश ने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के को हुकूमत फौरी तौर पर मुनासिब कीमत देकर खरीदी अमल में लाकर किसानों को राहत पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भारी तादाद में शिरकत की। एक ही दिन में 24 तलबा व तालिबात को कैस्ट व इनकम सर्टिफिकेट मोर्ताद रेवेन्यू ओहदेदार ने किए हवाले। जिले निजामाबाद बालकुंडल असम्बली मोर्तार मंडल मौजे धर्मुरा हाई स्कूल में SC ST BC माइनॉरिटी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले 24 तलबा व तालिबात ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के वसूल के लिए कैस्ट व इनकम सर्टिफिकेट से मुतालिक दरख्वास्त मी सेवा मराकज पर दाखिल किए, जिसे फौरी तौर पर एमआरओ दफ्तर में हवाले करने की बिना पर मंडल के तहसीलदार ने डी श्रीधर ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर एक ही दिन में तमाम कैस्ट व इनकम सर्टिफिकेट से मुतालिक दरख्वास्तों का जायजा लेकर एक ही दिन में 24 तलबा व तालिबात को कैस्ट व इनकम सर्टिफिकेट की मंजूरी अमल में लाने पर धर्मुरा के हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात ने मंडल तहसीलदार डी श्रीधर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। चिकन की कीमतों में कमी, टमाटर की कीमतों में इजाफा। शहर और रियासत में चिकन की कीमतों में मामूली कमी आई है, जबकि टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। रिटेल मार्केट में चिकन 200 रुपये फी किलो हो गया है, जिससे अवाम को कदरे राहत मिली है, लेकिन टमाटर की कीमतें आम आदमी को भी परेशान कर रही हैं। कहा गया है कि कार्तिक मौसम की वजह से चिकन की कीमतें कम हुई है, क्योंकि बाज़ लोग इस दौरान चिकन का इस्तेमाल नहीं करते। चिकन की कीमतें 200 ta 250 रुपये फी किलो के दरमियान है, जबकि अक्टूबर में ये कीमत 290 रुपये तक थी। ताहम टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं और कई लोगों ने इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया है। सप्लाई में कमी को कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया जा रहा है। बारिश की वजह से भी मार्केट में टमाटर की आमद कम हुई है, क्योंकि चंद अजला में इसकी फसल मुतासर हुई है। उमूमन हैदराबाद को यौमिया 180 ट्रक टमाटर आते हैं, जो अब घटकर सिर्फ 60 ट्रक रह गए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से टमाटर की आमद कम होने से रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपये फी किलो हो गई है। 2 हफ्ते कबल यह कीमत 50 रुपये थी। बाज़ सारिफिन का कहना है कि इन्होंने टमाटर खरीदना तर्क कर दिया है, क्योंकि 1 किलो टमाटर की कीमत में आधा किलो चिकन दस्तयाब हो रहा है। बाज़ सारिफिन का कहना है कि हालांकि टमाटर एक ज़रूरी सब्जी है और इसका अपना मज़ा है, लेकिन वो महंगाई की वजह से दूसरी सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों के मसाइल के हल के लिए कांग्रेस पार्टी के वफद ने की भैंसा तहसीलदार से मुलाकात, वो की नुमाइंदगी। जिले सदर जनाब पी रामाराव पटेल की हिदायत पर कांग्रेस का एक वफद भैंसा तहसील ऑफिस पहुंचकर डिप्टी तहसील ऑफिसर को एक मेमोरेंडम हवाले किया और मुतालबा किया कि हालिया बारिश की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ है, तेलंगाना हुकूमत भरपाई करे। किसानों के कर्ज की माफी का ऐलान किया गया था। हुकूमत की जानिब से 3 साल का वक्फा हो चुका है, अभी तक कर्ज माफ नहीं किया गया। इस मौके पर मीडिया से खिताब के दौरान जनाब एम ए लतीफ, जिला नर्मल अखलती जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर किसानों के हुकूक को नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, हर महज पर किसानों के मसाइल के लिए आवाज उठाएगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी और आगे भी साथ रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जय जवान जय किसान का नारा लगाया है। इस मौके पर आनंद राव पटेल और BC सेल रहनुमा श्रीनु, टाउन सदर अमजद, NSUI सुदर्शन, रवि व दीगर मौजूद थे।
शहर के आरबी वीआरआर स्कूल में पीआरटीयू के जिले सदर मोहन रेड्डी को सोसाइटी में इमरान से मुताल्लिका मेंबरान ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। शहर के आरबी वीआरआर स्कूल में पीआरटीयू के जिले सदर मोहन रेड्डी को सोसाइटी से मुताल्लिका मेंबरान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर आरबी वीआरआर सोसाइटी के चेयरमैन अमृता लता व सेक्रेटरी गोवर्धन रेड्डी ने गुलपोशी और शालपोशी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पीआरटीयू के जिले सदर मोहन रेड्डी असातिज़ा साहिबीन से मुताल्लिक़ मसाइल को फिलफूर हल करने के अलावा हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहने का इजहार किया। वो इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। वेलपुर से मोते जाने के दौरान पेश आए दिलखराज सड़क हादसे से मुतालिक मुकाम का कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने मुशाहिदा किया। वो मुस्तकबिल में इस किस्म के हादसे को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने वेलपुर पुलिस स्टेशन का जायजा लेते हुए हाल ही में वेलपुर से मोते जाने के दौरान 23 नवंबर 2021 को शाम के औकात कार में ठीक 12:30 पर एक कार तेज रफ्तार से ताड़ी के दरख्त से टकराने के बाद जाए मौके पर 2 अफराद हलाक होने से मुताल्लिक़ हादसे का मुकाम का मुशाहिदा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में इस किस्म के दिलखराज सड़क हादसात को रोकने के मुताल्लिक़ जिम्मेदार ओहदेदारान को चंद एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाने की हिदायत दी। ఏసీపీ ఆర్మూర్తోనే తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్తో డిస్కషన్ అయింది. సో సిరికొండలో కూడా డిస్కస్ చేసాము. ఇక్కడే కూడా జనరల్ పోలీస్ స్టేషన్ విజిట్ ఫంక్షనింగ్ డిస్కస్ చేసాము. మా సిబ్బంది ఎట్లా పని చేస్తున్నారు, దాంట్లో రిసెప్షన్ కానిస్టేబుల్ బాగా పని చేస్తున్నారు, మన కంప్యూటర్ కానిస్టేబుల్ కంప్యూటర్ ఇన్ఛార్జ్ బాగా పని చేస్తున్నారు. ఇద్దరికి కాంగ్రాచులేట్ కూడా చేశాను, రివార్డు కూడా ఇస్తాము. రోడ్ యాక్సిడెంట్ కొంచెం పెరిగింది ఈ మధ్యలో. ఈ సంవత్సరాలు 25 యాక్సిడెంట్ జరిగినాయి. దాంట్లో 8 ఫేటల్ అంటే డెత్ అయింది అండ్ 17 నాన్ ఇంజరీ యాక్సిడెంట్ అయింది. దెబ్బలు వచ్చినాయి 17 కేసులు. సో రోడ్ యాక్సిడెంట్ రూరల్ ఏరియా మొత్తం అంటే రూరల్ ఏరియా కాబట్టి ఎందుకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో కొంచెం అంటే 2 వీలర్ యాక్సిడెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఎక్కువ సెల్ఫ్ యాక్సిడెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో నేను సిరికొండ మండల్ ప్రజలకి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, దయచేసి ఒకటి హెల్మెట్ వేసుకోండి, 2 వీలర్లో కంపల్సరీగా హెల్మెట్ వేసుకోండి. आरमूर रखने संभली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मनादिर कमेटी के मेंबरान के हमरा नवनता सिद्दुल्ला गोट्टा से मुतालिक घाट रोड का जायजा लिया। वो नंदीपेट व माकलोर में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करके नए जोड़े को दी मुबारकबाद। आरमूर रखने संभली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मनादिर कमेटी के मेंबरान के जरिए नवनता सिद्दुल्ला गोट्टा से मुतालिक घाट रोड का जायजा लिया। वो बातजा इन्होंने सिद्दुल्ला गोट्टा पर वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इसी तरह से इन्होंने घाट रोड से मुतालिक तामीरी कामों के लिए फंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल में लाने के मुतालिक RNB ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया और इन्होंने इसके अलावा नंदीपेट माकलोर मंडल में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करके नए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मोहतरमा की कविता बिला मुकाबला एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी दर्ज करवाते हुए लिखी तारीख। इनकी कामयाबी पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से शहर में जश्न का एहतमाम तो शहर भर में कायदीन की जानिब से मिठाइयों की तकसीम। आरटीसी की तरक्की के लिए TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली जेडी गोवर्धन ने किया अपने तनख्वाह का आरटीसी को अतिया। पीआरटीयू जिले सदर मोहन रेड्डी की आरबी वीआरआर सोसाइटी जिम्मेदारों की जानिब से तहनीती तकरीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया का वेलपुर पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा व हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाई करने की दी हिदायत।
PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा, आर्मूर व अवामी मसाइल की समाअत व तरक्याती कामों का लिया जायजा। ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश एक्शन कमेटी का दूसरा सालाना इजलास का दहली में लिहाज, सदर रफीक कुरैशी को इनकी फर्जंदे की शिरकत, किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।